विद्यालय सावधान विश्राम। विद्यालय सावधान। राष्ट्रगान शुरू करेंगे। शुरू कर। विद्यालय सावधान विश्राम। Good morning everyone. Today I Akshat Kumar Sethi, a student of class 10 studying in Kendra Vidyalaya Vyasnagar, is going to deliver a speech on the topic Independence Day. Every year on 15 August, Independence Day is celebrated as a national holiday in India, when people remember the long phase of our nation's independence from British rule. On August 15, 1947, India gained independence after a series of movements in which many freedom fighters sacrificed their lives. After independence, on 15 August 1947, Jawaharlal Nehru became the first Indian Prime Minister to raise the national flag at the Red Fort near Delhi's Lahore Gate. By unfurling the national flag and singing the national anthem, students, teachers, parents and other individuals come together to celebrate Independence Day. The Indian Prime Minister in the national capital, New Delhi, at Red Fort also hosts our national flag. After that, the salute is given by firing 21 guns and a helicopter showers tricolor flowers on the flag. The colors in our flag represent different things. Saffron signifies courage and sacrifice. White signifies peace and truth. Green signifies faith and chivalry. In the center of our flag there is an Ashok Chakra that contains 24 evenly distributed spikes. We recall that great sacrifices of Bhagat Singh, Sukhdev, Rajguru, Gandhiji and other daring freedom fighters on this special day for their unforgettable contribution to India's independence. So that's for all today. Jai Hind. वो सदते मैं जाना मेरी दिल जानिया, मैं शीश झुकावा मेरी दिल जानिया, तेरे नाम जो कर जावा कम दूसरे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी, दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी, जीती रहो जीतती रहो। सुप्रभात। आज मैं मेरे देश के लिए वीर जवानों के लिए गीत सुनाने जा रहा हूँ। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। आहा 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 आहा, पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के, सुनकर गरज हम
वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। हा हा हा, सीना है फौलाद का अपना, फूलों जैसा दिल है, तन में विंध्याचल का बल है, मन में ताजमहल है। हा हा हा, सीना है फौलाद का अपना, फूलों जैसा दिल है, तन में विंध्याचल का बल है, मन में ताजमहल है। हा हा हा, ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। हा हा हा, रप्पुत्पात लप्पात कर। जय हिंद। Respected Principal Sir and my lovely teachers, good morning everyone. My name is Adar Senapati from class 4. Today I am going to speak some rhymes about our Independence Day. First of all, I wish you a very happy Independence Day. On this day in 1947, we got freedom from British rule. Our freedom fighters like Mahatma Gandhi, Khudiram Bose, Netaji Subhash Chandra Bose, Rani Lakshmi Bai and many others devote and sacrifice their life and gives us freedom. Due to our brave hero, today we live independently and happily. So we respect them and remember them. Now is the time to finish my speech. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat, Bande Mataram. जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, हो माथे पे बिंदिया, जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, हो माथे पे इंडिया. It happens only in India. It happens only in India. जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, हो माथे पे इंडिया. Myself Preeti. Myself Pratigya. To commemorate the 75th Independence Day, we are going to present a patriotic song. Hope you all will enjoy it. दीदी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल. दीदी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल. आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल. दीदी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल. धरती पे लड़ी तूने अजब ढंग की लड़ाई, दागी न कहीं तोप न बंदूक चलाई, दुश्मन के किले पर भी न की तूने चढ़ाई. वारे फकीर खूब करामात दिखाई, चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल. साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल. दीदी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल,
संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकों और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस शुभ अवसर पर मैं सुधृति कुछ बोलना चाहती हूँ। 15 अगस्त 1947 को भारत को लगभग 200 वर्षों के बाद ब्रिटिश शासन से आजादी मिली, लेकिन यह आजादी आसानी से नहीं मिली। इसके पीछे कई स्वतंत्रता सेनानियों, प्रसिद्ध महापुरुषों जैसे गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस आदि के दशकों का संघर्ष और बलिदान है। इसलिए हर साल 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 15 अगस्त 2021 को भारत अपना 75वीं का स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। हम इस दिन को पूरे देश में बहुत खुशी और उत्साह के साथ मनाते हैं। इस दिन देश के विभिन्न प्रांत में झंडारोहण समारोह, परेड, देशभक्ति गीत और नृत्य आदि आयोजित किए जाते हैं। मुख्य उत्सव राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में लाल किले में आयोजित किया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय झंडा फहराते हैं और राष्ट्र को संबोधित करते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री द्वारा झंडा फहराने के बाद राष्ट्रगान गाया जाता है और बंदूकों से राष्ट्रीय झंडा को सलामी दी जाती है और हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की जाती है। यह सब हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए किया जाता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। प्रभात, मेरा नाम फैसल अहमद शेख है। मैं कक्षा 1 का छात्र हूँ। मैं आज मेरे देश के लिए एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। मेरा भारत मेरी शान, मेरा भारत मेरी जान, तिरंगा जिसकी पहचान है, उसको मेरा सलाम है। भारत इसका नाम है, ये हमारी जान है। देश है ये बलिदानों का, देश है ये वीर जवानों का। इस देश की रक्षा हम करेंगे, किसी भी दुश्मन से ना डरेंगे। मेरा भारत मेरी शान, मेरा भारत मेरी जान। जय हिंद। यहाँ हर कदम कदम पे धरती
पे थोड़ा सा वतन का भी हक था। ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यही तक था। ये तेरी ज़मीं तेरे खून से ही तो सजती संवरती है रांझे। तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। हम टीपू सुल्तान, जिसे शेर मैसूर कहा जाता है। शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ के 100 साल जिंदगी से बेहतर है। Now I would like to request our principal sir to give his valuable speech on this auspicious occasion. नमस्कार, आप सभी को स्वागत है 75वां इंडिपेंडेंस डे, स्वाधीनता दिवस, जिसको हम आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में इस साल भर मनाने वाले। 75वां आज़ादी इतनी आसानी एक रास्ता हमने तैयार नहीं किया है। इंडिपेंडेंस की और स्वाधीनता की जो लड़ाई थी उसमें कितनी कुर्बानियाँ थी आप लोगों को सबको पता है। हमने जिनके नाम सुने हैं, हमने जिनके नाम पढ़े हैं, जो हमारी स्वाधीनता संग्रामी रहे हैं, इनके अलावा अनगिनत करोड़ों वैसे हमारे जनता थे, भारतवासी थे, जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम के लिए अपनी बलिदान दी है, अपनी सब कुछ निछावर किया है, अपनी सारी पूंजी जमा हुए राशि, उनकी जितनी उनकी कमाई, वो सारी चीज़ों को उन्होंने त्याग करके स्वाधीनता संग्राम के लिए अपनी सब कुछ निछावर कर दी है। जरूर उन सभी के मन में एक ही चीज़ आशा और एक ही मनसा रही होगी, और वो सब एकजुट होके एक मन प्राण से देश को विदेशियों से, पराधीनता से मुक्त करने के लिए उन्होंने ज़रूर ये लड़ाई लड़ी होगी। लेकिन मैं आपको आज यहाँ बताना चाहूँगा, जो कि आज की संदर्भ में वो लड़ाई लड़ चुके हैं और उसकी वजह से हमने विदेशियों को यहाँ से निकाल दिया है। और 75वां साल मतलब हमने 75 साल स्वाधीनता संघ का जो अनुभव हमने किया है। अभी कुछ ही लोग रहे होंगे जिनको कि 1947 अगस्त 15 के दिन वो उनको याद होगा और वो आज भी उस मेमोरीज को रिवाइव कर रहे होंगे, क्योंकि 75 साल से ऊपर जो लोग हैं उनको ही केवल उसकी याददाश्त होगी। तो बाकी सब मुझे लगता है कि 99% ऑफ और मे बी 95 से ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन है जिनको कि इसकी कोई अनुभव नहीं होगा कि स्वाधीनता संग्राम के बाद 15 अगस्त 1947 में कैसा एहसास था सभी की मन में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये बहुत सारे लोग आप में जो पेरेंट्स हैं और उनकी पेरेंट्स हैं और ग्रैंड पेरेंट्स हैं आपको बता पाएंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो संग्राम शुरू हुआ वो केवल हम इतिहास की पन्नों में पढ़ रहे हैं कि ये सिकोई म्यूटिनी या 1847 से शुरू हुई, 57 से शुरू हुई, ऐसा नहीं है। इसकी तैयारी बहुत सालों से सच चली थी और सबसे बड़ी तैयारी हमारी रही है कि हमारे मन में जो सारे गलत सोच थी, जैसे कि कुसंस्कार थी, उनको दूर भगाना और सभी को जाति धर्म निर्विशेष से बिना धर्म और जाति की फर्क किए हुए सबको इकट्ठा करना, एक सूत्र में बांधना। इसकी लड़ाई बहुत लंबी थी और बहुत कठिन थी। उसके बारे में हमने नहीं पढ़ा कि उसमें हमें कोई विदेशियों के साथ कोई उसकी लड़ाई जंग लड़नी थी। हमने खुद के साथ खुद की लड़ाई थी। हमें भारतवासियों को इकट्ठा करने के लिए हमें अपनी कुसंस्कार से हमें खुद को बचाना था। और ये जातिवाद हो या धर्म निरपेक्षता या धर्म से एक धर्म से दूसरे धर्म को अलग करने वाली जो सोच है, उनसे हमें अपने आप को
फ्री करना था। फ्रीडम तो सही माने में वही होती है जब हम इस तरह की गलत सोच जो कि एक देश की एकता को और अखंडता को तोड़ देती है, उनसे हम बचें। आज भी इसकी ज़रूरत है, आज भी इसकी ज़रूरत है, ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मुझे अनुभव होता है कि हम इतनी आज़ादी की जो ये हवा और इसमें जो सांस लेने के बाद हमने इन्हीं चीज़ों को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और कोई ऐसे मूवमेंट और एक वैसी रिवॉल्यूशन नहीं हुई कि जिससे कि हम एक प्राण से इस देश को इकट्ठा करके जोड़ने के लिए जो मानसा है, जो मानसिकता है, उसकी तरफ ध्यान दें। अभी इसकी ज़रूरत है कि हम सब इकट्ठा रहें। कोई भी अलगपन या अलगाववादी या हमें एक दूसरे से अलग करने वाली कोई भी शक्ति को, कोई भी जितनी बड़ी शक्ति हो, इन शक्तियों के सामने हम ना झुकें। पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि ये शक्तियाँ कैसे काम करती है। वो बहुत आज के समय में ये बहुत सामने आके हमारे सामने ये नहीं बताती कि हमें धर्म के नाम पे या जाति के नाम से या इवन रीजन के नाम से हमने एक दूसरे को अलग करें। मैं दिल्ली में 10 साल रहा हूँ। मैंने देखा है कि नॉर्थ ईस्ट के लोग, हमारी भारत के प्रांत के लोग जो मणिपुर की है, मेघालय की है, नागालैंड की है, उनके साथ किस तरह से व्यवहार होती है जैसे कि वो हमारे देश की नहीं है। इस तरह की मनोवृत्ति जो हमारी अभी भी है, रीजनल फीलिंग है, कास्ट फीलिंग है, रिलीजियस फीलिंग है, इनके साथ हमें लड़ाई लड़ना है। और जो लोग इस तरह से हमें अलग कर रहे हैं, हमें उनको पहचानना है, उनकी गलत जो उद्देश्य है उससे खुद को बचाना है, और हर एक देशवासियों को अपनापन से खुद के अपनी भाई बहन मान के, अपना खुद की लोग मान के हमें उनके साथ रहने की कोशिश करनी चाहिए। जहाँ पर मनांतर या कोई मतभेद हो, हम उसे बहुत पेशेंटली उससे हमें उसको निपटना है और उसको समाधान निकलना है, लेकिन देश की एकता को और अखंडता को बनाए रखना है। तब जाके हमारी ये स्वाधीनता की लड़ाई आगे भी बढ़ सकेगी। धन्यवाद, सबको शुभकामना 75th इंडिपेंडेंस डे के अवसर में। और हम आपको बता दें कि फिट इंडिया की एक मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स की और यूथ एंड स्पोर्ट्स की तरफ से हमने एक मूवमेंट शुरू की है कि हम अपनी शरीर को और अपनी मन को स्वस्थ रखें, और उसके लिए एक फिट इंडिया रन की व्यवस्था हुई है। मैं अनुरोध करूँगा सारे पेरेंट्स से, हमारे स्टूडेंट्स से, बच्चों से कि वो आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर कुछ भी हो, प्रत्येक दिन वो दौड़ लगाए अपने आसपास। अभी कोरोना की सावधानी को बरतते हुए, कोरोना की सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी बात है, और भी ये अभी गई नहीं है, और हमारे केवल 11% पॉपुलेशन शायद अभी वैक्सीनेट हुई है, और मान लीजिए कि अभी 89% बाकी है जो वैक्सीनेट नहीं हो, और वैक्सीनेशन के बाद भी हमें सावधानी बरतना है। तो आप सावधानी बरतते रहिए और अपने आप को, अपने मन को और शरीर को स्वस्थ रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।